Sri Vilasar ji and Nagar Sevak Nitin Patil watching from VIP views box. Alpesh first ball, copybook style push in covers and they threw for one. Sona Devi, Timgar won the toss, selected field first. Today is the second last match you are watching. The last match today between SP Sangampada and Maggie 11 in Bhiwandi Open format. Alpesh Chaudhary, experienced campaigner, facing him batsman Ritik. Goes to Ritik, left lone, right decision, away from the offer stump. White signal from umpire is 2 without loss. What a last match, excellent batting from Mangesh Vaidi, one of the best chasing inning on this ground. Alpesh Chaudhary, turn, reaches bowling mark, turn from Asha Patil now this stand. Facing him, batsman Ritik. You are watching the match between Palak Sports Wadauli B near Domoli. This time goes his back foot and cracks it too long off. Meanwhile, batsman gets one. Alpesh. Very quiet cricket going on. 3 on the board without loss. But big name, Palak Sport Wadauli. This time try to reverse shot. Not a right choice from batsman. Vishal dot ball. Alpesh read the body language of batsman. The last match between SP Sangampada and Maggie 11 in Open Bhiwandi pool. Bhiwandi Open format. Alpesh Chaudhary. Beauty, beauty, age and gone. What a magnificent delivery from Alpesh Chaudhary, and finally Vishal on his way. Beautiful ball indeed. No footwork, hop forward, age and gone. Great bowling. And this is the great start from Sona Devi Timgar and especially the experienced campaigner Alpesh Chaudhary. First wicket has fallen now. Palak Sports 3 for the loss of 1 wicket. New batsman in. The captain Kamlesh is the best fielder, I think. Kamlesh, what a fielder he is. Left-handed captain on 1 down position. Alpesh Chaudhary delighted there, claimed the very important wicket of Vishal. Departure of Vishal, captain himself on 1 down position. Alpesh Chaudhary. This time slower one. Put away on the onside, control shot from captain, and off the mark with single. Kamlesh off the mark with single, and his score is 4 for the loss of 1 wicket. First over in progress. Remind you, Palak Sport Wadauli B losing a toss, batting first here. Alpesh Chaudhary. Bright floodlight, an international look of CCG. This time beauty, but away from the offer stump. White signal from umpire. Length is perfect, but line is away from the offer stump. Harish Pandya joining us
In commentary in Priyan's studio, Voice of India, welcome. And Isnel Munde, the decorators, also welcome. This is the very tidy bowling so far from Alpesh Chaudhary. Right arm over the stumps. This time Chinese cut, first bounce to wicket keeper. And that marks an excellent over. Turn from Alpesh Chaudhary, who consider 5 runs and claim 1 wicket. एक ओवर की समाप्ति 5 रन और 1 विकेट। अजय गरत आपने देखा कि चाइनीज कट लगा था, लेकिन चाइना का सामान चला तो शाम तक नहीं तो शाम तक। ये आप देख सकते हैं रेंज रोवर का डेमो महापौर MH05 AX 9009। ये 009 ये 007 की याद दिलाता है। Welcome Harish Pandya joining in commentary. Siddiq bhai, 007 is license to kill and 009 is a license to win. क्या बात है। गेंदबाजी में बुलाया गया गेंदबाज किशन मात्रे को, फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज है। पहली गेंद कवर ड्राइव लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद चली गई लगभग डीप मिड ऑफ में। 1 रन से 6 पे पहुंचा स्कोर। किशन मात्रे सामना करेंगे दाएं हाथ के बैट्समैन ऋतिक। देखिए कमलेश जो इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा, इस मर्तबा क्रीज में पीछे चले गए, फोर्स किया गेंद को वाइड ऑफ डीप मिड ऑन 1 रन। हेनरी ओलंगा एक जमाने में जब गेंदबाजी करते थे तो उनकी गेंदबाजी से ज्यादा उनके बालों को लोग देखते थे, जुल्फों को। आजकल तो हर खिलाड़ी एक अलग ही बालों को बना के आता है और उन बालों का चर्चा भी हो रहा है, लेकिन उनके पीछे खर्चा भी हो रहा है। जो टीम के कैप्टन है उनको आप देखिए, कमलेश को। हालांकि जो जुल्फों के पेच रहते हैं उसमें एक बार कोई फंस गया तो निकल नहीं पाता है। इस मर्तबा बहुत खूबसूरत ड्राइव, थोड़ी सी मिसफील्ड, आंखों में रन पूरा। देखो सिद्दीक भाई, पलक एंटरप्राइजेस नाम है और पलक एंटरप्राइजेस के बल्लेबाजों को पलक झपकाते दौड़ना होगा और उन्होंने कर दिखाया। पलक झपकते ही रन को पूरा किया, स्कोर 8 रनों पे पहुंचा। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना। आज का आखिरी मुकाबला भिवंडी ओपन सिटी क्रिकेट से SP संगम पारा और मैगी 11। आप मैगी बाद में खाइए, मैगी का मैच मत छोड़िए। इस मर्तबा शफल करके गेंद को खेल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ। लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर इंप्रूवाइज तरीके से 4 रन। अच्छा शॉट, इंप्रोवाइजेशन बहुत अच्छा था, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था। इसको मुंबई और ठाणे के क्रिकेट में कहते हैं अंदर घुस के मारना। जिस तरह से शफल हुए हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखते ही बन रहा है, और एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी यही है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसको अच्छे शॉट के लिए प्रोत्साहित करता है। फैंटास्टिक टाइमिंग। वाकई में हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही बेहतर था इस शॉट के। इस मर्तबा अच्छी वापसी, तेज तर्रार गेंद, बल्ले के करीब से बैट्समैन के इरादे और बल्ले दोनों को बीट करती हुई। और किशन ने भी यहाँ पर एक संदेश भेजा है, मैंने खेल का तरीका बदला है, तेवर नहीं बदले। अब राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, अपने स्टेप में झुके। आपने सही कहा, तेवर नहीं बदले, लेकिन देखना है कि किशन के तीखे तेवर हैं, अनुष्का के देवर इंग्लैंड के सामने क्या करते हैं।
इस बीच पुल करना चाहते थे, अच्छी लंबाई की गेंद थी, हालांकि जिस तरह से समझा था बैट्समैन ने वही नहीं, शरीर से टकराई, शॉर्ट लेग पे गई, अंपायर का इशारा, बल्ले से टकराने भर के बाद शरीर से टकराई थी, 1 रन स्कोर में आता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पे 13 रन आए, 3 ओवर बचे और वाकई में आपकी शाम को और रंगीन बनाने के लिए माइक्रोफोन पे उस आवाज को मैं आवाज दे रहा हूं जो लगभग पिछले 22 साल से इसी ग्राउंड से ज्यादा गूंजी है। जिस तरह इस ग्राउंड से प्रेम पर्वत का वो गाना गूंजा, ये दिल और उनकी निगाहों के साए जो ऑल इंडिया रेडियो से भी इतनी बार नहीं सुना गया था, उस तरह किसी और एक ग्राउंड से इतनी बार कोई आवाज एक बार नहीं सुनी गई। वो आवाज है वॉइस ऑफ इंडिया, आपके साथ हरीश पंड्या। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाई इज्जत अफजाई का। आप देख रहे हैं महापौर चषक 2021 ब्रॉट टू यू बाय चैलेंज स्पोर्ट्स, गोकुल नगर भिवंडी। बॉलिंग के लिए तैयार हो रहे हैं अब महेश चौहान। महेश की पहली गेंद और देखिए इस बार क्रीज में डीप जाकर पुल कर दिया, बड़े कामयाब अंदाज में लगने वाला ये भव्य से था। टप्पा खाते ही अजय असे फटके जेव्हा लागतात ना तेव्हा तोंडातून एक शब्द निघतो, खडखटाट। ज्या पद्धतीने त्या चेंडूला फिनिश केलं होतं ऋतिक, मागील सामन्याचा सामनावीर, आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी सुरुवात केली या सामन्यामध्ये सुद्धा एक मोठी खेळण्याचा संकल्प घेऊन तो मैदानामध्ये उतरलाय। धावसंख्या 19 आणि या चॅलेंजचा लोगो तुम्ही बघत आहात, द हॉर्स पॉवर ऑफ चॅलेंज। पुढील चेंडू फुलरलेनचा मात्र आवाक्याचा बाहेर असल्या कारणाने पंचांनी अवांतर धाव घोषित केले वाईड म्हणून, आणि या एका धावेने धावसंख्या आता 20, 1 गडी बाद, तृतीय षटक। इस टूर्नामेंट का हर एक पहलू बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो कोई भी चीज़ हम देखते हैं, कोई सिंबल हो, कोई नाम हो, सभी के पीछे कुछ ना कुछ मतलब छिपा हुआ है। इसे बीच एक और अच्छी गेंद, महेश चव्हाण ने दोपहर के मैच में शुरुआत अच्छी नहीं रही थी लेकिन वापसी बढ़िया की थी उन्होंने, और इस मैच में भी कुछ वही कहानी है। छक्का लगा, वाइट गेंद की, लेकिन उसके बाद डॉट गेंद। अभी भी हालांकि 4 गेंदें उनके ओवर में शेष है। आताचा चेंडू जागा बनवून स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळायचा प्रयत्न होता, मात्र अजय पदलालित्य चांगलं असणं महत्वाचं आहे। म्हणजे तुम्ही फ्रंट फुटवर खेळा, बॅक फुटवर खेळा, मात्र स्थिर होऊन खेळता येत नाही। जहां फुटवर्क बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही निर्णायक है किसी भी बल्लेबाज के लिए रन्स बनाने के लिए। आताचा चेंडू हवेमध्ये, एक धाव, गचाळ क्षेत्ररक्षण आणि दुसरी धाव पूर्ण केली आहे। क्षेत्ररक्षण सुद्धा तेवढंच महत्वाचं असणार आहे। एमआरईचा चेंडू आहे, सर्वात महागडी बॅट आहे, परंतु निकाल जेव्हा लागतो तेव्हा क्षेत्ररक्षण काय केलं हा प्रश्न प्रशिक्षक नेहमी विचारत असतो। देखिए इस गेंद पर मुझे लगता है कि आबो हवा का भी काफ़ी असर पड़ता है। हवा जब बहती रहती है तो फील्डिंग करना और मुश्किल हो जाता है, कैचेस पकड़ना खास तौर पर, क्योंकि ये गेंद वजन में हल्की है, झूलती रहती है हवा में। आताचा एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून मारण्यात आलेला अद्भुत फटका, खणखणीत चौकार। कड़क शॉट ही कहा जा सकता है। स्ट्रोक को ऑन खेला है और थोड़ा दूर से खेला, लेकिन गेंद को दूर भी भेज दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। दर्शनीय लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव 4 रनों के लिए। ऋतिक एक अच्छी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए 19 पर बैटिंग कर रहे हैं और टीम का स्कोर हुआ है 26 रन। खूप चांगली खेळी म्हणावी लागेल।
ऋतिक 19 धावांवर खेळतोय. मागच्या सामन्यामध्ये सुद्धा सामनावीर ठरला होता. आता मात्र कुठेतरी त्याने पवित्रा बदलला होता आणि हे चूक ती केली त्याने. म्हणजे पंडित भीमसेन जोशी यांनी सारेगामा पधनीसा गावं, त्यांनी रॅप गाऊन चालणार नाही असातला भाग होता. ऋतिक जर हा चेंडू रेषेत येऊन खेळला असता तर कदाचित धावा जास्त मिळाल्या असता. नहीं, खास बात यह है कि यदि अमिताभ बच्चन जब काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उनको वही काम करना चाहिए. हाँ, यदि आपके जीवन में कुछ संकट आ जाता है तो फिर टैक्सी भी चलानी चाहिए. यहाँ पर आप सीधे बैट से अच्छे रन्स बना रहे हो तो क्या जरूरत है उंगली टेढ़ी करने की. ह्या मैदानावर निर्धाव चेंडू खेळणं म्हणजे सर्वात मोठं हे पाप असेल. कारण एवढं चांगलं मैदान आहे तुमच्याकडे, मोकळ्या मैदानामध्ये धावा काढण्यासाठी मुभा आहे आणि जर तुम्ही निर्धाव चेंडू खेळलात तर नक्की त्याचं नुकसान जे आहे ते संघासाठी होणार आहे. आणि म्हणून क्रिकेटमध्ये एक म्हण आहे, संघासाठी खेळा, स्वतःसाठी नाही. धावसंख्या 26, एक गडी बाद. किसन मात्रे आपलं दुसरं आणि संघासाठी चतुर्थ षटक घेऊन येतोय आणि पहिल्या चेंडूवर किसन थोडा रागावलाय. धावसंख्या पुढे सरकते आता, एक गडी बाद 27. बहुत अच्छे खिलाड़ी है किसन मात्रे, हरफन मौला खिलाड़ी है. बैटिंग करने के लिए आते हैं तो पावर हिटिंग करते हैं, बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और गेंदबाजी में भी उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है इस टीम के लिए. विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पर उनकी तरफ देखा जाता है और कहीं ना कहीं एक मुख्य गेंदबाज के तौर पर भी वो खेल रहे हैं. भले ऑलराउंडर है लेकिन देखिए 2 ओवर्स वो कर रहे हैं. दोपहर के मैच में मैन ऑफ द मैच भी बने थे. आता 6 चेंडू स्लॉग मध्ये श्याम चौधरीकडे खेळत एक धाव पूर्ण केली आहे. अजय, या स्पर्धेचं जे थेट प्रक्षेपण आहे त्याची सुद्धा स्तुती सुरू आहे. म्हणजे अगदी खेळाडूंच्या बुटापासून की त्याच्या गालावर असलेल्या घामाचे जे बिंदू आहेत किंवा रात्रीचे दवबिंदू पर्यंत आपल्या कॅमेरामॅननी टिपलेले आहेत. आणि या थेट प्रक्षेपण बद्दल तू काय सांगू इच्छितो? जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम. प्रिंस मूवीज की जिस तरह से हाई डेफिनेशन कैमरास का इस्तेमाल किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो चीज़ें हम देखते हैं वही चीज़ें टेनिस बॉल क्रिकेट में भी दर्शक देखना चाहते हैं. खिलाड़ियों के हाव भाव. आताचा चेंडू पूल करायचा प्रयत्न मात्र सोपा झेल सुटलाय. असं क्षेत्ररक्षण तुम्ही अजिबात नाही केलं पाहिजे. तिसरे पंच यांची मदत घेतली मात्र दोन्ही फलंदाज धावलेत. बघा, यालाच म्हणतात डोंबिवली फास्ट. डोंबिवली परिसरातला संघ आहे आणि सकाळी डोंबिवलीतून गाडी पकडायची म्हटल्यावर सर्वात मोठं आव्हान असते. मात्र हे दोन्ही फलंदाजांना माहित होतं संधी आहे, संधीचं सोनं करून घेऊया. कहीं ना कहीं बल्लेबाज की जान हलक में भी रहेगी क्योंकि तीसरे अंपायर की मदद ली गई है और जब भी मामला तीसरे अंपायर के पास सौंपा जाता है तो मामला बहुत ही नजदीकी होता है. दूसरे रन के चक्कर में ये घटना घटी है और देखना है क्या निर्णय आता है तीसरे अंपायर का. बल्लेबाज की तकनीक बहुत अच्छी है. बैट स्लाइड किया है उन्होंने, बैट ग्राउंड किया है, जो कि एक आदर्श तकनीक मानी जाती है जब आप रन पूरा करते हो. और ज़्यादा स्लो मोशन में देखने को मिल रहा है. ऐसा टेलीकास्ट रहेगा, अरे जी तो क्यों सराहना नहीं होगी. नाही म्हणजे अगदी मैदानाचा प्रत्येक कानाकोपऱ्यात यांनी कव्हर केलंय रवी गुळवी आणि टीम प्रिन्स मूवीज. आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंगवर सुद्धा एवढा चांगला फीडबॅक येतोय जगभरातून की खरोखर असं वाटतंय की ही स्पर्धा आपण बघतोय. जे लोक याचे देही याचे डोळा बघतायत मैदानावर ते तर धन्य आहेत, परंतु जे यूट्यूबवर बघतायत ते सुद्धा धन्य झालेले आहेत. ये मामला कुछ ज़्यादा ही नज़दीकी नज़र आ रहा है. तीसरे अंपायर भी अपना पूरा समय लेते हुए. यदि बैट्समैन सेफ है तो 3 रन मिलेंगे और विकेट गिरता है तो 1 ही रन मिलेगा. आणि बाद घोषित करण्यात आलेला आहे तिसऱ्या पंचाने. म्हणजे एकच धाव मोजली जाईल आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण. अजय, परत एकदा झेल हातातून सुटल्यानंतर डोक्याचा वापर, प्रेझन्स ऑफ माइंड
आणि त्यांनी लगेच तो थ्रो केला. आणि नाहीतर बहुतेक लोक जे असतात ते फ्रस्ट्रेट असतात, माझ्या हातातून झेल सुटला, मी आता काय करू, परंतु तसं न करता त्यांनी लगेच थ्रो केला. बिल्कुल ज्यादा निराश नहीं हुए, रिकवरी बहुत जल्द की वहां पर यश पाटिल ने, अच्छा थ्रो किया. और ये आपके स्क्रीन पर है इस समय सन ऑफ विलासार मिस्टर मयूर पाटिल, और वो भी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, उनको भी हम एक्शन में देखेंगे इस टूर्नामेंट में. अच्छी बॉलिंग करते हैं. अर्थात. आणि काल मयूर आणि मयुरेश दोघांनी ठरवलं होतं की आम्ही लहान असताना आईने आम्हाला बॉल बॅट घेऊन दिले, आज आई महापौर आहे, परंतु ती सुद्धा खेळाडू होऊ शकते. आणि म्हणून त्यांनी ते 2 चेंडू जेव्हा प्रतिभा विलास यांनी खेळले तेव्हा नक्की मयूर आणि मयुरेशच्या चेहऱ्यावरचा आनंद जो होता तो गगनात मावेन असा झालेला. वाकई में वो बहुत ही यादगार लम्हे इस मेयर कप के. इस बार ऑन साइड में मोड़ दिया है, बल्ले की थोड़ी अंदर लगी है, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन जरूर मिलेगा. अभी तक के खेल में 3 बैट्समैन आउट हुए हैं और स्कोर हुआ है 30 रन. 2 बल्कि बैट्समैन आउट हुए हैं, 2 बल्लेबाज आउट हुए हैं. चौथे नंबर पर आए हैं विकास, उन्होंने अपना खाता खोल लिया है. इस समय चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है. और आपको क्या लग रहा है कि वडवली बी टीम के बल्लेबाज कौन से आंकड़े के बारे में इस समय सोच रहे होंगे? मला वाटतं 40 पर्यंत तरी जायला पाहिजे, कमीत कमी 40. जर 45 झाले तर उत्तम. पुढील चेंडू परत एकदा टोलावून मारायचा प्रयत्न आहे आणि डायरेक्ट महापौर व्ह्युअर्स गॅलरीवर हा गगनभेदी षटकार. एक सेट बल्लेबाज का क्रीज पर होने का यही फायदा है. हल्की सी शॉट गेंद थी और ये उनका बहुत ही मनपसंदीदा स्ट्रोक है, मैं समझता हूँ. जिस तरह से वो पुल शॉट लगा रहे हैं, इससे पहले भी बिल्कुल इसी अंदाज में उन्होंने पुल खेला था और उसमें भी उनको पूरे 6 रन मिले थे. अगदी ऑफ स्टंपच्या बाहेरून आपला दर्जा काय तो दाखवून देतोय. बघा, प्रत्येक चेंडू अभ्यासपूर्वक जो खेळाडू खेळतो तो जागतिक दर्जा काय असतो त्याची ग्वाही देतो. आणि ऋतिकने जे क्रिकेट आज दाखवलंय दोन्ही सामन्यांमध्ये, जागतिक दर्जाचं मन जिंकणारं क्रिकेट. 36 वर 2. परत एकदा फ्लॅट शॉट आणि चेंडू मैदानाच्या बाहेर, चाबुक शॉट, 4 धावा. हालांकि इस दफा पर्याप्त एलिवेशन तो नहीं था स्ट्रोक में, लेकिन सबसे अच्छी बात थी प्लेसमेंट. 2 खिलाड़ियों के दरमियान से खेला है. एक और पुल शॉट और गेंद को निकाल दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर. बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ऋतिक इस समय 30 पर खेल रहे हैं और टीम का स्कोर हुआ है 40 रन. 40 की आपने बात की, 4 ओवर में ही 40 रन बन गए. अभी भी 1 ओवर का खेल बचा हुआ है. अजय, दुसरी एक गोष्ट तू बघशील, कलात्मक जे फटके असतात ना, त्याला जर टायमिंग अफलातून भेटलं तर मग चेंडू रॉकेट सारखे उडायला लागतात. आणि आता ऋतिक ज्या पद्धतीने फलंदाजी करते, कुठेतरी ऋतिकला कसं थांबवायचं यासाठी ते घेऊन येत आहेत. श्याम चौधरी यांना मी विनंती करणार आहे, आजचा शेवटचा सामना मॅगी 11 आणि SP संगमपाडा हा ओपन क्रिकेटचा सामना आहे. दोघांनी टॉस बॉक्सच्या इथे संपर्क साधायचा आहे. पिछले मैच में बहुत ही यादगार पारी देखने को मिली मंगेश वैती द्वारा. आगरी राजा माहौल टीम ने रोमांचक मैच में जीत दर्ज की. नाबाद 45 रनों की पारी खेली थी मंगेश वैती ने, और इस टूर्नामेंट के अभी तक के खेल की वो सबसे बेहतरीन पारी है, इसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन कहीं ना कहीं उनके पीछे पीछे इस समय चल रहे हैं ऋतिक. जिस तरह से वो अंडर प्रेशर बैटिंग कर रहे हैं, ऑन साइड को फेवर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया शॉट्स लगा रहे हैं अपनी टीम के लिए. एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेलते हुए 15 गेंदों में 30 रन बना चुके हैं ऋतिक. आखिरी ओवर लेकर शाम, अनुभवी गेंदबाज है, बायत से गेंदबाजी करते हैं शाम. शॉट ऑफ लेंथ पुल कर दिया है, गजब की टाइमिंग, गेंद सीमा रेखा के बाहर. यहां पर छाते हुए ऋतिक, मैन फ्रॉम वडवली, और अब विकास. ये विकास का पहला सिक्सर. शाम की पहली गेंद बिल्कुल हाफ ट्रैकर. इस तरह की गेंदबाजी ज़्यादा करते भी नहीं है शाम. उनकी जो स्वाभाविक लेंथ होती है वो अलग होती है, लेकिन पहली गेंद कहीं ना कहीं लूजनर रही है, ढीली गेंद थी, उसको सही नसीहत दी है बैट्समैन विकास ने. विकास पहुंचे हैं 7 पर, 2 गेंदों का मात्र सामना किया है. टीम का स्कोर 46.
आगे रखी हुई गेंद, इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है, गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। वहां पर खिलाड़ी बहुत ही सतर्क है, लेकिन दूसरे का प्रयास, गजब की दौड़ विकेटों के बीच में। जितनी भी सराहना की जाए दोनों भी बल्लेबाजों की उतनी कम। एक को दो में कन्वर्ट किया है, रनों की रफ्तार को लगातार बढ़ाते हुए, और वडोदरी बी टीम अच्छी स्थिति में अब पहुंच रही है। स्कोर 48 रन, अभी भी 4 गेंदें पारी में शेष। शाम लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार स्लाइस किया और ये आसान सा कैच ड्रॉप। बैकवर्ड पॉइंट पर हुई है गलती, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। जिस तरह के स्टैंडर्ड्स हमेशा सेट किए हैं सोना देवी टेमघर के फील्डर्स ने, उस तरह का स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन नहीं किया है। इस महत्वपूर्ण मुकाबले में आसान से कैचेस छूट रहे हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अंतिम 3 गेंदें, एक बड़ा शॉट आता है तो जरूर 55 प्लस टोटल हमें देखने को मिल सकता है। इस समय स्कोर 49 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। और यह आया बड़ा शॉट, ऑन साइड में स्लॉक किया, वाटरमैन का जबरदस्त इस्तेमाल, ऋतिक के बल्ले से शानदार छक्का। ऐसा लग रहा है कि ऋतिक को गेंद इस समय फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, जिस तरह से वो गेंद को आसानी से मैदान के बाहर भेज रहे हैं। 36 रनों की नाबाद पारी, मात्र 16 गेंदों का सामना किया है। केवल बड़ी पारी नहीं खेली है, बल्कि एक तेज पारी भी खेली है, जिसकी सख्त आवश्यकता थी। जब 5-5 ओवर का मैच होता है तो ये काफी फर्क पड़ जाता है। एक भी बल्लेबाज यदि आपकी टीम का धुआंधार बैटिंग करता है तो आप अच्छा स्कोर बनाने में सफल हो जाते हो। 3 छक्के और 3 चौके ऋतिक के बल्ले से। चौकों और छक्कों में डील करते हुए ऋतिक शाम काफी महंगे साबित होते हुए। इस बार आगे रखी थी फ्रेंच कट और फुटबॉल स्किल, वहां पर पैर से रोका है अल्पेश ने। बढ़िया एफर्ट, सही तकनीक का इस्तेमाल किया है फील्डर ने, क्योंकि झुकने का ज्यादा वक्त नहीं था उनके पास। यदि झुककर हाथ से गेंद को फील्ड करने का प्रयास करते तो गेंद निकल जाती फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 3 रन मेरे ख्याल से बचाया है वहां पर अल्पेश ने। पारी की आखिरी गेंद लेकर शाम, इस बार उड़ाने का प्रयास था ऑन साइड में, स्विंग एंड मिस। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई। बहुत ही बढ़िया टोटल अंडर फ्लड लाइट्स। 5 ओवर के खेल में 56 रन बना लिए हैं अपने निर्धारित 5 ओवर्स में वडोदरी बी टीम ने, और जीतने के लिए 57 रनों की चुनौती सोना देवी टेमघर टीम के सामने। बिल्कुल, मैं तो अजय गरज इतना कहूंगा कि ऋतिक और बुटीक में कोई फर्क नहीं। जिस तरह बुटीक के डिस्प्ले में एक से एक ड्रेसेस सजाए जाते हैं, उस तरह यहाँ ऋतिक ने एक से एक शॉट लगाए। क्या बात है सिद्दीक जी। तो 57 का टारगेट है। आइए आपको लेकर चलते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ। आज का ये अंतिम मैच जिसका टॉस होने जा रहा है एसपी संगमपाड़ा और मैगी 11 के बीच में, भिवंडी ओपन का मैच है और एक तगड़ा मुकाबला जरूर आपको देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं टॉस के लिए हरीश पंड्या के पास। हेलो, खूप खूप धन्यवाद अजय गरत आणि सिद्दीक बाबे फ्रॉम प्रियांशी स्टुडिओ. मित्रांनो, आपण बघत आहात महापौर चषक 2021 चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या वतीने आयोजित या स्पर्धेतील आज दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसाचा शेवटचा सामनाचा नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी आज आपण इथे एकत्र झालेले आहोत. आपल्यासोबत आहेत गणेशजी पाटील, ज्यांनी ग्रिलचं खूप चांगलं काम केलंय आणि मजबूत ग्रिल बसवलंय आणि आज त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस करत असताना मला खूप आनंद होतोय. तर गणेशजी, तुमच्या हस्ते हा आपण नाणेफेक करणार आहोत एसपी संगमपाडा आणि मॅगी 11. हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जी. दानिश, ये मैदान की आपकी तो बहुत सारी यादें हैं, आपका घर भी बगल में ही है. टॉस जीता है आपने, क्या डिसीजन लिया है और क्यों? बैटिंग करने का हम लोग डिसीजन लिए.
और लाइट में आपको लग रहा है कि हमारी बॉल ट्रैवल अच्छा हो रहा है, अभी आपने मैच देखा, ये एक वजह है या आपको अपने बल्लेबाजों पर भरोसा है? नहीं कैसा कि हाँ बल्लेबाजों के ऊपर भरोसा है हमको। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप अपनी बैटिंग की तयारी शुरू कीजिए। SP संगमपाडा अर्थात 10 पैकी 9 कर्णधार जे असतात ते प्रथम गोलंदाजी स्वीकार करतात आणि आता तुम्ही गोलंदाजी करणार आहात, तर त्यासाठी तुझा संघ तयार आहे का, की तुझी मानसिक स्थिती फलंदाजीची होती? नाही 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 फिल्डिंगची होती. आणि स्पर्धेसाठी तयारी कशी झाली आहे? म्हणजे स्पर्धा अनाऊन्स झाली त्यानंतर एक थोडा वेळ सुद्धा मिळाला आहे, तर संघपाडातील जे खेळाडू आहेत त्यांनी कशी तयारी केली? कंटिन्यू प्रॅक्टिसला आहे, तर लाईफ हिट आहे. तर तुला आणि तुझ्या संघाला सुद्धा हार्दिक शुभेच्छा आहेत. विशिंग यू गुड लक. तर मित्रांनो, आताच नाणेफेक झालेली आहे आणि नाणेफेक जिंकलेली आहे मॅगी 11नी आणि प्रथम फलंदाजी करायचा निर्णय घेतला आहे. प्रथम गोलंदाजी करणार आहे तो SP संगमपाडा. हा सामना थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे, मात्र तत्पूर्वी आपण वळणार आहोत पलक एंटरप्राइजेस वडवली बी विरुद्ध सोनादेवी टेमघर, आणि हा सामना खूप अटीतटीचा होईल असं मला कुठेतरी वाटतंय. सिद्दीक बाबी यांनी आधीच सांगितलंय कि ऋतिक आणि बुटीक, सिद्दीक भाई मुझे भी ऐसा लगा कि ऋतिक जिस तरह से खेलते हैं उन्होंने पूरे दुनिया को एक मैसेज भेजा है. ऋतिक रोशन का एक गाना है, मैं ऐसा क्यों हूँ मैं वैसा क्यों हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं ऐसा ही हूँ. तो ऋतिक ने अपना जो जज्बा है दिखाया है. आइए चेस की कहानी सुनते हैं, प्रियांशी स्टूडियो की कहानी. थैंक यू. धन्यवाद. देखिए, जो भी टीमें खेल रही है उनको एक इंस्ट्रक्शन है, आपको मैदान के अंदर वार्म अप नहीं करना है, प्रैक्टिस नहीं करना है, सराव नहीं करना है. ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा A1 शो है. इंटरनेशनल लुक जब लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर और चैलेंज ने दिया है, तो टीमों की भी जवाबदारी है कि उसको फॉलो करे. नेक्स्ट टॉस won by Maggie 11 and elected bat first against SP Sangampada, the last match of evening. Now 57 is the target. I think this is not easy in front of floodlight, but Temgar have a long batting lineup. Alpesh Chaudhary and Akshay, these two are the openers. Today is a beautiful climate, ideal cricket condition. Cool breeze running over the ground, and look at that, Mayor Cup 2021, Pratibha Vilas. क्या बात है अजय, कोई कंपनी से प्रिंट होकर ये चीज आती है तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बन जाता है. और इससे पता चलता है इस टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का दर्जा, स्टैंडर्ड. So 57 is the target. Today is the beautiful climate, cool breeze running over the ground, terrific atmosphere of cricket. Here at the heart of City Challenge Cricket Ground. Good evening and welcome all of you in Mayor Cup 2021 from Legend of Bhiwandi, Vilasar, and Challenge Sports and Challenge Organizing Committee. Two openers, Alpesh Chaudhary facing Kamlesh, the captain of Palak Sports, Vadavli B near Domoli. First ball beautifully played, lovely looking cover drive under the eye, confident looking stroke played by Alpesh Chaudhary and off the mark with single. काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस उनका बढ़ेगा इस स्ट्रोक के बाद, और मुझे लगता है कि अल्पेश चौधरी का जो किरदार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है इस रनचेज में, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह से हमने देखा कि अनुभवी बल्लेबाज मंगेश ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर बैटिंग की थी. Kamlesh this time goes his back foot, use the depth of the crease and turning on the onside, and with the stroke Akshay off the mark with single. Both batsmen open their account with single, and Sonadevi Temgar 2 without loss, chasing a target of 57 in 5 overs. तो मैं ये कह रहा था कि मंगेश का जो रोल रहा था वही रोल इस रनचेज में अल्पेश का हो सकता है. अन्य बल्लेबाज शायद उनके इर्द गिर्द बड़े बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करेंगे और अपना विकेट कहीं ना कहीं बचाकर आक्रामकता भी दिखा सकते हैं. This time once more try to pull it, not get too much elevation behind his stroke, unconventional shot, and wasn't a bad delivery. That was a good lane delivery, and Alpesh tried to pull it inside edge of the bat, rose to mid wicket
and through for one. Runs coming in form of singles. जिस तरह का लक्ष्य है 57 रनों का, उसको देखते हुए हर ओवर में एक बड़ा शॉट जरूरी हो गया है। This time beauty extra pace and extra bounce, moving way to the batsman, natural angle. What a player he is, Kamlesh, the captain of Palak Sports, one of the great all-rounder. बहुत कम समय में इन्होंने अपना ऊंचा नाम किया है। काफी युवा खिलाड़ी है, पूरी टीम यदि हम देखें तो काफी युवा है। Kamlesh. This time it's hard and high, should be caught. Yes, he's out. He played on the up, wasn't a volley, but found the fielder at long on, and first wicket is gone now. पहली 4 गेंदों पर बड़ा शॉट नहीं आया था और उसी वजह से ये लंबा शॉट खेलने की कोशिश की। ऑन द राइज क्रीज में बहुत पीछे जाकर सामने लॉब किया था, लॉन्ग ऑन को क्लियर करना चाहते थे, रिस्क उठाया वहां पर बैट्समैन ने, लेकिन उससे फायदा नहीं हुआ, बल्कि टीम को नुकसान हुआ है और फायदा हुआ है OWB टीम को। अच्छा कैच लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के नजदीक। Wonderful telecast from Prince Movies in different angle. Look like the international telecast, Channel 9. रिस्क तो उठाना है बल्लेबाजों को, लेकिन उत्तम उदाहरण पिछले मैच में देखने को मिला कि किस तरह का रिस्क उठाकर यहाँ पर बल्लेबाजी की जा सकती है। कैलकुलेटेड रिस्क, गैप में किस तरह से आप खेल सकते हो, बड़े शॉट से यदि खेलने हैं तो इनफील्ड के ऊपर से किस तरह से खेले जा सकते हैं। मंगेश वैती ने जबरदस्त उदाहरण पेश किया। On field umpire, Amar Moto. नए बल्लेबाज बायत के विस्फोटक बल्लेबाज श्याम चौधरी आए हैं। Yes, मरता क्या ना करता, the captain on one down position, Sham Chaudhary. In this season, Sham Chaudhary looking in good touch. But this is the class is permanent, the form is permanent. This is the perfect time captain prove himself. Oh, beauty. Appeal, yes, age and gone. Age and gone, and Sham Chaudhary is out, and this is the big blow. बहुत अच्छा निर्णय अंपायर का, डेविएशन जरूर देखने को मिला था, छेड़खानी करने का प्रयास, पहली गेंद का सामना कर रहे थे श्याम, पैर ज्यादा चले नहीं, जी हाँ बिल्कुल एज लगा है, जेन्युइन एज है और अंपायर के लिए भी कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। जोरदार अपील हुई और अपील को स्वीकार कर लिया अंपायर ने। श्याम बहुत ही निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए, ये शाम के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। गेंदबाजी में भी उन्होंने निराश किया और बल्लेबाजी में भी। Very disappointed man, captain sit back to the dugout, and what a prize wicket claim by captain Kamlesh, and it has been a very exciting and wonderful overturn from captain Kamlesh, who consider only 3 runs and claim 2 wickets. एक ओवर की समाप्ति टीमगढ़ की कठिनाइयां बढ़ती हुई। आज मौसम ने भी करवट ली है, बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा मौसम आप देख रहे हैं। ठंडी हवा के झोंके और खुशगवार माहौल बनाते हुए गेंदबाजी में बुलाया गया है गेंदबाज ऋतिक को, जिन्होंने बल्लेबाजी में 17 गेंदों में 37 रन बनाए। इस मर्तबा आसमान में तान दिया है, आसमानी तूफानी सिक्सर अल्पेश चौधरी के बल्ले से। कहीं ना कहीं अल्पेश अब समझ रहे हैं कि उनका जो किरदार शुरुआत में था वो थोड़ा सा बदल गया है। वो शुरुआत में थोड़ा सा संभल कर खेलना चाह रहे थे, लेकिन पहले ओवर में ज्यादा रन नहीं आए, तो अब हाथ खोलने होंगे। अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, स्लॉक किया ऑन साइड में, तारामंडल में भेज दिया गेंद को। छन्नाटीदार सिक्सर अल्पेश के बैट से। दूर गगन की छांव में गेंद चली गई थी। ये देखिए फिर से दूसरे एंगल से बहुत ऊंचा स्ट्रोक, मैसिव हिट, बिग वन। इस तरह के आक्रामक शॉट्स खेलते रहने होंगे सोना देवी टेमगढ़ टीम के बल्लेबाजों को मुकाबला जीतने के लिए, और साथ में ये भी ध्यान में रखना होगा कि वो ज्यादा विकेट्स ना गवाए, क्योंकि रनचेज में विकेट्स काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। विकेट आपके यदि महफूज रहे तो जरूर आखिर के 2 ओवर में 25-30 रन भी बनाए जा सकते हैं। ऋतिक इस मर्तबा बल्ले के अंदर लगी है गेंद, लगभग वाइडिश फाइन लेग पे पहुंची है।
एक रन स्कोर में आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 10 रन। यहाँ से 22 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 47 रनों की आवश्यकता। आवश्यक रन रेट 12 के ऊपर चला गया है, उस पर एक निगाह रखना बहुत ही जरूरी। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मर्तबा छोड़ दिया, सही फैसला वाइड। शोल्डर आर्म्स किए थे बैट्समैन ने, देखा कि ऑफ स्टंप के काफी बाहर है। यश पाटिल जो वापसी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट द्वारा, इस सीजन में ज्यादा क्रिकेट खेला ही नहीं है उन्होंने, और दोपहर के मैच में पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। ऋतिक इस मर्तबा बढ़िया गेंद खोल के रख दिया था बैट्समैन को। अच्छी नोकझोंक देखने को मिल रही है गेंद और बल्ले के बीच में। पहली गेंद पर सिक्सर लगा है इस ओवर में, उसके बाद लाइन ऑफ अटैक थोड़ा सा चेंज किया है गेंदबाज ने। पहली गेंद स्टंप्स की तरफ रखने का प्रयास किया था, जिस पर बड़ा शॉट खेला था अल्पेश ने, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बैट्समैन से थोड़ा दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंदबाजी हो रही है। इस मर्तबा ड्राइव किया गेंद को डीप कवर में, दूसरे की कोशिश है, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही कमाल शानदार की दौड़। रनिंग बिटवीन द विकेट है। रन के लिए हिरन बन गए दोनों भी बल्लेबाज। एक एक रन की लड़ाई है, एक एक रन की कीमत अच्छी तरह से जानते हैं दोनों भी बल्लेबाज, और साथ में जो फील्डिंग करने वाली टीम है WB, उनके खिलाड़ियों को भी पता है कि एक रन कितना कीमती है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट महापौर चषक 2021 भिवंडी। अब अल्पेश चौधरी और यश पाटिल को ऊपर इसलिए भेजा है कि जो आस्किंग रन रेट है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। पटकी भी गेंद, अजीबो गरीब शॉट, काउ कॉर्नर की तरफ गेंद चली गई थी। एक रन, स्कोर 14 पे पहुंचा है। देखिए इस तरह के जो इक्वेशन रहते हैं अजय, वहां पर हर ओवर में एक बड़ा शॉट आना जरूरी हो जाता है। जी हाँ, पहले ओवर में मैंने यही चर्चा की थी कि एक शॉट बड़ा आना ही चाहिए, यानी कि मैच में बनी रह सकती है टीमगर टीम। इस मर्तबा फिर से आसमान में खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद आसमान में खड़ी रह गई है, लेकिन नो मैंस लैंड में जाती हुई, जब तक के जाकर खुद गेंदबाज फील्ड करते, एक रन बनाया। अल्पेश चौधरी हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं रनों को रफ्तार देने की। ऑफ स्टंप के बहुत बार से गेंद को खींचा था। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 15, विकेट गिरे हैं 2। अब यहां से 3 ओवर में जो रन है वो चाहिए 42, जो आस्किंग रन रेट है वो 14 पे जा चुका है। और देखिए जिस तरह से बल्लेबाजी की थी इससे पहले मैच में मंगेश वैती ने, बिल्कुल जिस तरह की सिचुएशन डिमांड कर रही थी, ये उसी तरह का इक्वेशन है। अल्पेश में वो क्लास है, यश पाटिल ऊंचे स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते, लेकिन कमलेश भी कुछ अलग ही ठान कर आए हैं, इसलिए कैप्टन ने अपने आप को दूसरे ओवर में कंटिन्यू रखा है। पहले ओवर में 3 रन देके 2 विकेट लिए थे, हैट्रिक पे आ गए, क्योंकि पिछले ओवर में जो ओवर था उसकी 2 गेंदों पे उन्होंने 2 विकेट लिए थे। इस गेंद के बाद मैं आपको बता दूंगा। इस मर्तबा छोड़ दिया, हैट्रिक भी नहीं हुआ और वाइड भी नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो 2 हैट्रिक हैं वो 2 ओवर में पूरे हुए, एक तो कपिल देव और दूसरे वकार यूनुस। जी हाँ, नियमों के अनुसार इस तरह से हैट्रिक दी जाती है। यदि इस गेंद पर विकेट मिलता गेंदबाज कमलेश को तो जरूर वो हैट्रिक उनकी पूरी होती, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, जाने दिया था अल्पेश ने। कमलेश, अल्पेश के लिए मिसक्यू हुक शॉट है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, 1 रन बनता हुआ। देखिए कमलेश ने अपने आप को इसलिए लगाया था, उनको पता था कि यहाँ से मैच सरक सकता है। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं कमलेश, कप्तान भी है, उनको पता है कि दबाव जो बना हुआ है बल्लेबाजों पर उसको और ज्यादा गहराने की कोशिश करनी होगी। 1-2 विकेट यदि इस ओवर में वो चटकाते हैं तो फिर स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी इस मैच में WB टीम की। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है, फील्डर मौजूद है, एक और विकेट।
यश पाटिल आउट। इसीलिए तो कप्तान ने अपने आप को आक्रमण पर जारी रखा था, विकेट छटकाने की कोशिश की और विकेट छटकाने में कामयाब। इस ओवर में कैप्टन कमलेश ऑन साइड में पुल करने की कोशिश की थी, ज्यादा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद नहीं थी, ये गुड लेन गेंद ही थी जिसको पुल करने का प्रयास किया था, सीधे फील्डर की गोदी में खेल बैठे, आसान सा कैच। बहुत ही बड़ा झटका लगा है, तीसरा नुकसान हुआ है यश पाटिल के रूप में सोना देवी टेमघर टीम को, और कहीं ना कहीं इस मैच में आप कही जा सकती है कि सोना देवी टेमघर टीम जो है वो बैकफुट पर है। बिल्कुल, आस्किंग रन रेट का जो दबाव था वही कारण था कि इस तरह का शॉट खेलने यश मजबूर हो गए थे। नए बैट्समैन पिच पर आए, किशन मात्रे पिंच हिटर, कमलेश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अल्पेश चौधरी को छोड़ दिया। देखिए ये जो स्थिति रहती है ना, यहाँ पर अंपायर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। देखिए प्रेशर इतना है कि ऑफ साइड में स्ट्रोक्स ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं, केवल पहली गेंद पर पुश किया था उन्होंने कवर्स की तरफ, अच्छा शॉट खेला था, उसके बाद बार बार उन्होंने ऑन साइड में खेलने की कोशिश की है, और इस ओवर में ऐसा हुआ है 2 बार कि उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद छोड़ दी है। कमलेश इस मर्तबा तेज शॉट खेलने की कोशिश, गुड लेन पे पड़ने के बाद गेंद ने अच्छा उछाल प्राप्त किया। देखिए गेंदबाजी इतनी नपीतुली अजयगरत हो रही है, गुडलैंड स्पॉट पर गेंदों को पिचअप करा रहे हैं, और ये देखिए बैट्समैन के लिए बहुत कम अवसर है। हालांकि स्क्वायर कट लगाने के लिए आदर्श गेंद थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है, बहुत करारा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पे, रन नहीं लिया वहां पर। अब 2 ओवर में कितने रन चाहिए, कितने रन दिए इस ओवर में? 1 रन। क्या बॉलिंग स्पेल है, 2 ओवर 4 रन और 3 विकेट। इट हैज बीन अ मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलिंग फिगर फ्रॉम कैप्टन कमलेश। पहले ओवर में 2 रन दिए, इस ओवर में 1 रन दिया। पहले ओवर में 2 रन देकर 2 विकेट लिए, इस ओवर में 1 रन देकर 1। अब इक्वेशन क्या है, 2 ओवर में कितने चाहिए? 41। एक ही रास्ता रह गया है, हिट आउट और गेट आउट। लेकिन देखना है कि हिट कर पाते हैं या किशन या नहीं। यदि बार बार हिट आउट करेंगे तो सुपर हिट भी हो जाएंगे बल्लेबाज। 12 गेंदे 41 रन, बहुत ही कठिन चुनौती है इस मैच को जीतने के लिए सोना देवी टेमघर टीम के बल्लेबाजों के सामने। बॉलिंग में परिवर्तन, दाहिने हाथ के गेंदबाज शुभम आक्रमण पर आते हुए, एक और होनहार खिलाड़ी वडवली गांव के, डोंबिवली परिसर की एक बहुत ही बेहतरीन टीम मेयर कप 2021 में एक्शन में है। किशन मात्रे के पास स्ट्राइक। ओवर की पहली गेंद दिशाई ने ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाने दिया, विकेट कीपर के पास अतिरिक्त रन मिलता हुआ सोना देवी टेमघर टीम को। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर चीजें मुश्किल जरूर हो जाती है कई बार, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं होता है। इस तरह के लक्ष्य भी छुए जा सकते हैं, लेकिन बार बार बाउंड्री को पार करना होगा। फिर से देखा पर का जाने दिया, और इस बार लीगल गेंद। फिर से सोचा कि वाइड होगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं लाइन के अंदर थी। अंपायर काफी चीजें देखते हैं जब बैट्समैन इस तरह से गेंद को छोड़ देता है। एक गाइडलाइन तो होती है अंपायर के लिए, वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन बल्लेबाज की पोजीशन भी देखी जाती है कि बल्लेबाज कहां पर खड़ा है, कितना शफल किया है उन्होंने, उस हिसाब से गेंदबाज को मार्जिन भी मिलता रहता है। इस बार उठा के खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, ऊंचाई ज्यादा दूरी कम है गेंद में, और आउट, आसान सा कैच। काफी ज्यादा उम्मीदें थी बल्लेबाज किशन मात्रे से, स्लॉक किया था ऑन साइड में, लेकिन बल्ले के थोड़ी सी ऊपर लगी है, जिस वजह से ऊंचाई ज्यादा थी स्ट्रोक में, काफी देर हवा में रही गेंद, और बहुत ही अच्छा कैच वहां पर। फील्डर ने कोई गलती नहीं की, डीप मिड विकेट की दिशा में गिरने वाला चौथा विकेट। सोना देवी टेमघर टीम की हालत बद से बदतर होती जा रही है इस रनचेज में। 17 पर चौथा झटका लगा है। यहां से जीतने के लिए अभी भी 40 रनों की आवश्यकता, मात्र 10 गेंदें शेष है। हर गेंद पर औसतन
चौके की आवश्यकता है। कमेंट्री बॉक्स में प्रियंश स्टूडियो में प्रवीण केडिया जी हमारे साथ है। अल्पेश काफी कोशिश कर रहे हैं लेकिन बात बन नहीं रही है, ज्यादातर मिस टाइम स्ट्रोक्स रहे हैं उनके। सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हैं, एक दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं। जहां तक भिवंडी तालुका क्रिकेट का सवाल है, अल्पेश कोशिश भरपूर की है उन्होंने, लेकिन जिस तरह से शॉट्स वो खेलना चाह रहे हैं उस तरह से शॉट्स उनके लग नहीं रहे हैं। और सिंगल डबल से तो यहाँ से अब काम बनने वाला नहीं है टेमघर टीम का। इस बार नए बैट्समैन विवेक ने स्लॉक स्वीप करने का प्रयास किया, जमीनी रास्ते से गेंद चली गई डीप मिड विकेट पर। जो फील्डर है कल्पेश बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं, एक अच्छा कैच भी लपका है उन्होंने इस ओवर में। और WB टीम की दोपहर में भी मैंने बात की थी कि ये खासियत है कि उनका क्षेत्ररक्षण भी बहुत लाजवाब रहता है। खेल के तीनों विभागों में इस मैच में WB टीम आगे है। ओ ये बैक ऑफ लेंथ और देखिए फिर से मिस टाइम स्ट्रोक, ज्यादातर ऊपरी किनारे लग रहे हैं। अल्पेश के बल्ले से हैरान और परेशान हो गए हैं। मौसम थोड़ा सा ठंडा है लेकिन अल्पेश को देखिए पसीने से तरबतर नजर आ रहे हैं। और विवेक पवार अभी अभी आए हैं, वो जरूर थोड़े फ्रेश नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर तो उनके ऊपर भी रहेगा क्योंकि टीम जो है वो काफी पिछड़ रही है इस मैच में। सोना देवी टेमघर 7 गेंदे 37 रन। इस बार बॉटम एंड का इस्तेमाल हवा में खेला है और जबरदस्त कैच। कल्पेश ने एक बार फिर से शानदार कैच लिया है, बहुत ही बढ़िया रनिंग कैच। और इसके साथ ही बैट्समैन आउट होते हुए विवेक पवार। मात्र अब औपचारिकताएं शेष नजर आ रही है इस मुकाबले में। WB टीम जीत के दहलीज पर, गजब का एंटीसिपेशन। डीप मिड विकेट की तरफ फील्डिंग कर रहे हैं, अपनी दाहिनी तरफ उनको जाना पड़ा था। जैसे ही स्ट्रोक खेला गया था दाहिनी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया था और एक बहुत ही शानदार कैच। विवेक पवार ने निराश किया, मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। और वैसे देखा जाए तो सभी बल्लेबाजों ने निराश किया है। टारगेट बड़ा था 57 रन अंडर फ्लड लाइट्स चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। जब मैच हो तो कभी भी आसान नहीं होता है, हालांकि मुश्किल जरूर होती है चीजें, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं होता है। शुरुआत महत्वपूर्ण थी, शुरुआत खराब रही। अक्षय जो सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। शाम आए थे 1 डाउन खेलने के लिए, खाता नहीं खोल पाए, गोल्डन डक पर आउट हुए। और उसके बाद अल्पेश पर काफी दबाव बना। 6 गेंदे 37 रन। विशाल की ये गेंद कौन बनाती हुई। इस तरह की पारियां अल्पेश द्वारा बड़ी कम देखने को मिलती है। अक्सर वो खेलते हैं जब क्रीज पर होते हैं तो बहुत ही ऑर्गेनाइज बल्लेबाज लगते हैं, लेकिन इस पारी में उनके विरुद्ध बहुत ही शानदार गेंदबाजी की गई है। जिस तरह से लेंथ में परिवर्तन गेंदबाजों ने लगातार किया है, एक अच्छे प्लान के तहत गेंदबाजी की गई है। इस बार फुल टॉस थी, बहुत जोर से बल्ला घुमाया था बैट्समैन ने, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क देखने को नहीं मिला और फुल टॉस गेंद का लाभ नहीं उठा पाए। बहुत खतरनाक साबित भी होता है जब आपके शरीर के इस हिस्से पर गेंद लगती है, लेकिन गार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक क्रिकेट है, टेनिस बॉल क्रिकेट में हर बल्लेबाज गार्ड का इस्तेमाल करता ही है। अच्छा शॉट, इस बार बहुत जल्दी लेन को ताड़ लिया था, पुल किया डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि देर हो गई है। ये स्ट्रोक्स थोड़ी जल्दी आने चाहिए थे। शुरुआती ओवर्स में इस तरह के स्ट्रोक्स की दरकार थी, अब तो केवल औपचारिकताएं शेष है। लेकिन फिर भी दर्शकों का मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे हैं बैट्समैन आवेश। नंबर 7 पर आए हैं सिक्सर के साथ अपना खाता खोलते हुए। केवल 3 गेंदें शेष है इस मुकाबले में। 3 गेंदों में 30 रनों की जरूरत। अभी क्रिकेट के खेल में ऐसा कोई स्ट्रोक तो है नहीं कि एक गेंद पर आपको 10 रन दे जाए। वडवली के समर्थक काफी खुश रहेंगे जो ऑनलाइन इस सीधे प्रसारण को एंजॉय कर रहे होंगे। सोना देवी टेमघर टीम जब खेलती है तो उनके भी काफ़ी समर्थक आते हैं, स्टैंड्स में भी ज़रूर उनके समर्थक हैं, लेकिन निराश हताश क्योंकि टीम का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। पहले राउंड के मैच में अच्छा प्रदर्शन ज़रूर रहा था, लेकिन दूसरे राउंड के मैच में हार की कगार पर सोना देवी टेमघर फिर से उछाल दिया है। इस बार कैच का मौका है और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, गजब की
विकेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं जब आप बड़े रनों का पीछा करते हो। पिछले मैच में हमने देखा 50 रनों का टारगेट चेज किया गया 5 ओवर के खेल में। मंगेश वैती ने धुआंधार बैटिंग की और उस पारी में खास बात ये रही थी कि ज़्यादा विकेट्स नहीं गंवाए थे। भले ही अन्य बल्लेबाजों का योगदान ज़्यादा नहीं था, लेकिन मंगेश वैती ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहता है सेट बैट्समैन के पास जब विकेट नहीं गिरते हैं। इस बार मिस फील्ड और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फील्डर भी थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं ये देखते हुए कि मुकाबला पूरी तरह से उनकी टीम के पक्ष में झुक गया है। कुछ खास मैच के नतीजे पर पड़ने वाला नहीं है इस चौके से। अल्पेश के खाते में 4 रन जरूर जोड़ दिए जाएंगे। और अब आखिरी गेंद इस मैच की, गति परिवर्तन, स्विंग एंड मिस, डॉट गेंद, और इसके साथ ही ये मुकाबला जीत लिया है पलक एंटरप्राइजेस वडवली बी टीम ने। गजब का खेल वडवली बी टीम द्वारा सही मायनों में जीत की जो बुनियाद है, जीत की जो नींव है वो रखी। सलामी बैट्समैन ऋतिक ने शानदार बैटिंग की, 37 रनों का योगदान दिया मात्र 17 गेंदों का सामना करते हुए। 3 चौके और 3 छक्के जड़े और जवाब में गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी की। सभी गेंदबाजों ने प्रभावित किया और केवल 31 रनों तक सीमित रखा सोना देवी टेमगढ़ टीम को। तो ये मुकाबला 25 रनों से जीत लिया है वडवली बी टीम ने। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने 37 रनों की आकर्षक पारी खेली वडवली बी टीम के लिए, ऋतिक। अल्पेश नाबाद रहे 18 रन बनाकर, लेकिन अपने चिरपरिचित अंदाज में बिल्कुल भी नहीं खेल पाए। आइए चलते पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ। हरीश पंड्या के पास मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है ऋतिक फॉर हिज 37 रन्स। खूप खूप धन्यवाद प्रियांशी स्टुडिओ। मित्रांनो, आताच झालेल्या सामन्याचा सामनावीरचा पारितोषिक देण्यासाठी मी सन्माननीय नगरसेवक नितीन पाटील आणि त्यांचे चिरंजीव केयूर पाटील यांना विनंती करतोय की आपण आमच्या सोबत जुळायचं आहे। नितीनजी तुम्ही पण यायचं आहे। आणि सॉरी भरत जैन जी आपलं शुभ हस्ते हे आपण मॅन ऑफ द मॅच देणार आहोत। सामनावीर आहे ऋतिक। ऋतिकला आहे 1000 रुपयाचं रोख पारितोषिक आणि अतिशय सुंदर अशी ट्रॉफी आहे चॅलेंज स्पोर्ट्स कडून। अशी ट्रॉफी जेव्हा घरात येतात ना, तेव्हा जसा घरामध्ये टीव्ही येतो, फ्रीज येतो, वॉशिंग मशीन येतो, तो जो आनंद असतो तो आनंद आज द्विगुणित झालाय। म्हणजे ऋतिक, सर्वात पहिलं म्हणजे तुला आनंद होईल की तू असा पहिला खेळाडू आहे ज्याने लागोपाठ 2 सामन्यांमध्ये सामनावीर पटकावलंय, तर कसं वाटतंय? खूप खूप छान वाटते सर। एवढ्या मोठ्या स्पर्धेत मी 2 वेळा मॅन ऑफ द मॅच भेटलो, खूप छान वाटतं। आय एम प्राऊड ऑफ यू। आणि ह्या सामन्यामध्ये म्हणजे धावांची गरज होती, टेमघर संघ सुद्धा महत्वाचा संघ आहे, पण अशा वेळेला तू खेळपट्टीवर उभा होता तर स्वतःला काय म्हणत होतास? म्हणजे एवढी मोठी खेळी लागोपाठ सातत्याने खेळणं तेवढं सोपं नसते। जेव्हा फर्स्ट बॅटिंग आली तेव्हाच आम्ही ठरवलं होतं, कॅप्टन आम्हाला बोलला की 50+ रन्स पाहिजेत आणि विशाल दादा पहिले आउट झाला, त्याच्यामुळे मग मी पूर्ण थांबून मॅच केलो। खूप खूप धन्यवाद। मित्रांनो, ऋतिक तुझ्यासाठी जो सफर को इख्तियार करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं, जो सफर को इख्तियार करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला रखो ऋतिक, आप जैसे मुसाफिर को तो भिवंडी के रास्ते भी इंतजार करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कीप प्लेइंग एंड कीप विनिंग। लेट्स गो बैक टू प्रियांशी स्टूडियो। थैंक यू।